Okay, good evening everyone and welcome back to your chemistry class. So today we'll be revising the chapter called classification of elements and periodic properties of elements. Okay, or in another words, you can say periodic properties of element and their periodicity. ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज. तो स्टार्ट हम करेंगे कहाँ से? पीरियोडिक टेबल से. ठीक है, तो जो इनिशियल पीरियड टेबल्स थे उनके बारे में बात नहीं करूंगा. मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न पीरियड टेबल से. उसका बेसिस क्या था? ठीक है, मॉडर्न पीरियड टेबल क्या था, क्या है सॉरी. देखो, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो किसने is given by हेनरी मोजले. ठीक है, and he said that the elements are or properties of elements are period. In periodic tables, elements are periodic properties of their atomic number. Okay. So as per the Henry Moseley, or the basis of periodic table was atomic number of atoms. As per the Henry Moseley, elements have the periodic properties. Elements have periodic properties on the basis of their atomic number, or as after a certain atomic number, the properties starts repeating itself. Okay. So periodic properties are the functions of atomic number. ऐसा भी हम बोल सकते हैं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर हमारे पास में थे 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. जो हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड्स है. ठीक है, अभी जो करंट जो मॉडर्न पीरियड टेबल है जिसको हम लार्ज पीरियड टेबल भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड टेबल भी हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो 18 ग्रुप्स हैं उनको 1 से लेके 18 तक डिनोट किया जाता है. लेकिन थोड़ा पहले तक इनको कैसे डिनोट करते? 1 से 8 तक डिनोट कर देते. एंड दोज वर लाइक दिस. मतलब देयर वर टू मतलब from 1 to 7 there are 2 groups from 1 to 7, and then plus 3 groups with 8. Group 8 had 3 groups in total, and there was one, sorry, this is from 0 no? Okay, plus 0, so the total of 18 groups. Those were the total of 18 groups. It's from 1 to 7. It was named as A and B, and the 8 was group 8 was basically the combination of 3 groups. Okay, and then there was a group 0 group. Those were named as noble cases. और मैं जल्दी से थोड़ा क्या करता हूँ, एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, इसे पीरियड टेबल का एक बेसिस तैयार कर रहा हूँ. ठीक है, जो मॉडर्न पीरियड टेबल वो कैसी दिखती है उसकी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ.
थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि उसको रेक्टिफाई करता हूँ जस्ट मिनट। This was the modern periodic table, and this is how it looks. Here we have hydrogen, here we have helium. I'm writing a few elements: lithium, beryllium, then boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and then neon. Okay. Here you have francium, and here you have radium. And then just give me a minute. Another 28 elements down here. Okay, so this is how our modern periodic table looks like. Let me tell you the name of groups in this periodic table. So this one is group 1, group 2, group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and this one is 18. Last one is 80. अब ये तो है जो लार्ज पीरियड टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ग्रुप नंबर करते हैं। जो इसके पहले जब मैं बोला था जीरो ग्रुप भी था उसमें, 1A 1 भी था, 2A 2 भी था, 7A 7 भी थे, एंड देन वी हैड 3 ग्रुप्स इन 8। तो वो इस तरह से थे, इन तीनों को कंबाइनली हम बोलते थे ग्रुप 8। दिस वाज ग्रुप 1A, दिस वाज 2A, दिस वाज 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. This was zero group. Okay, and then this was 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 1B, and 2B. Okay, this is how these groups were classified. And then first two groups are called S block elements. So basically these elements, these are called S block elements. Then these elements here, these are called P block elements. Then these middle elements are called D block elements. And the last, these bottom groups or bottom elements are basically called F block elements. These are the F block elements. So this is how our modern periodic table looks like. Okay, in this periodic table, all the elements. Okay, let me mark some. Okay, let me use this. Beside this, okay, these elements, on this side of this line, all the elements are metals. Metals till here, till all the S block element.
apart from hydrogen. Okay, and these elements on this line are metalloids. These are metalloids, and elements on this side are non-metals. Are non-metals. ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एंड जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इधर नॉन मेटल्स है, इधर मेटल्स। ओके, सो फार सो गुड। कहीं भी कोई डाउट आए तो जल्दी से बता देना, ठीक है। चैट सेक्शन में लिख देना या अपना हैंड रेज कर देना। आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क मी डाउट्स। Now moving forward, these D block elements are also called, अच्छा उसके पहले group 1 elements are called alkali metals. Group 2 elements are called alkali earth metals. Okay, then group 18 elements are called noble gases, or also known as inert gases. Group 17 elements are called halogens. Group 16 are called chalcogens. Group 15 are called nicogens. And the group 14 are called carbon family. Are called carbon family. Then D block elements are called transition elements or transition metals, and F block elements are called inner transition elements. Inner transition metals. ठीक है, साथ ही साथ में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं लेंथेनोइड्स, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर lanthanum, and second was actinoids, elements coming after actinium. Okay, all the actinoids apart from the okay, so all the actinoids apart from after thorium are radioactive. ठीक है, all the atoms after thorium are radioactive, so keep that in mind as well. ठीक है, these are some common names or common properties which are given to each group or a group of elements. ठीक है, then moving forward, if we talk about the metallic character, metallic character is already done, not metallic character but basicity and acidity of oxides. जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, फॉर्म द ऑक्साइड
if you form the oxides of the elements, then what is the basicity or what is the acidity of those oxides and how that changes along the period and along the group. So basicity basically increases as you go down the group and acidity increases as you go along the group. मतलब जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, जब टॉप से बॉटम जाओगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी ऑक्साइड्स की, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। एंड जो मेटलॉइड्स बेसिकली होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, उभयधर्मी, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। Moving forward, let's talk about the radius. Okay, so radius is basically as per the Bohr atomic model, radius is proportional to n square by z, but that is not entirely correct because Bohr model is not entirely right. So this expression modified as the radius is proportional to n square by z effective, where n is the period, means which period we are talking about, period number, and z effective is the effective atomic number. Okay, z effective is written as z minus sigma, where z is atomic number of course and sigma is screening constant. सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो देखो होता क्या है कि ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहां से आ गया। एक्चुअली देखो जो बोर का मॉडल था उसने ये अज्यूम करके चले थे कि भाई किसी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हुए तो अगर तुम डेरिवेशन में जाओ बोर मॉडल के, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन लगता है उसको कहीं कंसीडर नहीं किया गया था, right? Nowhere in derivation of Bohr's atomic model repulsion between electron was considered. जब इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्सन को कंसीडर नहीं किया गया है तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन नहीं होगा, होगा अगर किसी एटम में मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हुए। बेसिकली ये जो स्क्रीनिंग कॉन्सेप्ट है ये वहीं से आता है। बेसिकली क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ये वहीं से आता है, यानी बेसिकली स्क्रीनिंग कांस्टेंट एक तरह से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है उसको फैक्टर कर रहा है, उसको काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझिए इसको, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। जो बोर का एटॉमिक मॉडल था उसमें हमने कहीं ना कहीं क्या किया था, जब अट्रैक्शन फोर्स की बात की तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमने लिखा था, राइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये होगा के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन साथ साथ माइनस में क्या होगा के इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट में लेता हूं, लेट्स से ए इनटू ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और ये फोर्स कहां से आया है, ये है रिपल्सन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन। तो इसी यही बेसिक जो फोर्स ना, वहां से हमारे पास में क्या आया, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा आया है। वैसे क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो बेसिक जो ये ए है ना, ये ए और कुछ नहीं बल्कि ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अभी स्क्रीनिंग कांस्टेंट का काम क्या होता है, ये बेसिकली करता क्या है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट प्रोटेक्ट्स आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ना लगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, ये इसका काम है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जस्ट अ मिनट।
पहले हम ये देखते हैं कि सिग्मा जो है कैसे वेरी करता है पीरियड टेबल में। फिर हम देखेंगे कि जेड इफेक्टिव जो है, देखो जेड तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, चाहे हम टॉप टू बॉटम जाए चाहे लेफ्ट से राइट जाए, जेड इज ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन जेड इफेक्टिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जेड इफेक्टिव जो है उसका ट्रेंड कैसा होगा, टॉप टू बॉटम से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसकी हम बात, उसके लिए पहले हमें बात करनी पड़ेगी सिग्मा की। तो सिग्मा देखो, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हम बात करें, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो पीरियड है वो कांस्टेंट, हम सेम पीरियड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। और हमारा सिग्मा बेसिकली है कि भाई आउटर इलेक्ट्रॉन जो है उसको, ये इनर इलेक्ट्रॉन से कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जब तक सेम पीरियड यानी हम सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा रहे हैं, और जब हम सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो नंबर कांस्टेंट है। और अगर वो नंबर कांस्टेंट है, इसका मतलब सिग्मा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेफ्ट टू राइट क्या है, सिग्मा इज कांस्टेंट। टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो उस केस में देखो सिग्मा के साथ में क्या होगा, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एक नया ऑर्बिट जो वो इनर ऑर्बिट बन गया है। तो इसको ऐसे समझो, पहले इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं इसी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब तक ऑर्बिट सेम है, यानी कि अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनका नंबर कांस्टेंट है, जब तक वो नंबर कांस्टेंट है सिग्मा कांस्टेंट। जब हम नीचे वाले ग्रुप में गए, तो नीचे वाले पीरियड में गए, यानी एन इंक्रीज हो गया, यानी हमारा ऑर्बिट चेंज हो गया है। अब जब इस ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा ये इनर ऑर्बिट आ गया, सॉरी एक्स्ट्रा इनर इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, these are the now extra electron। फिर जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो these electrons are the extra electron, then again going out these electrons in this orbit will be extra electrons। एंड जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो क्या होगा भाई, रिपल्सन इंक्रीज होगा। जब रिपल्सन इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स सिग्मा इंक्रीज होगा। तो यानी जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सिग्मा क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो होगी सिग्मा की बात। फिर अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव से हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जेड इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। सिग्मा कांस्टेंट है, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या करेंगे, हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऑफ कोर्स जेड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में इनर ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वहां पे सिग्मा भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गया है, एंड हेंस जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, हल्का सा इंक्रीज करेगा बट कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं करेगा, वो थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया जेड इफेक्टिव और सिग्मा का रोल। अब यहां से हम देखते हैं कि भाई आर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो रेडियस जो है, लेफ्ट से राइट जब तुम जाओगे तो एन तो कांस्टेंट है क्योंकि हम सेम ऑर्बिट के अंदर चल रहे हैं। जब एन कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या हो रहा है, देखो एन कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजिंग। तो आर क्या होगा भाई, आर क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, आर डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, राइट।
फिर जब हम टॉप टू बॉटम में जा रहे हैं तो एन इंक्रीज कर गया है, जेड इफेक्टिव इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो फिर यहां से हम बोल सकते हैं कि आर जो है वो बोलो भाई इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। रेडियस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस डेफिनेटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेडियस क्या करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। लेकिन वो रेडियस के क्या कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो रीजन उसका होता है जब हमारे पास में एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं हमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट जो एलिमेंट्स जस्ट आफ्टर लेंथेनॉइड आते हैं या जस्ट आफ्टर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं उनका रेडियस डिक्रीज कर जाता है, उनका रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एक्सेप्शन इन रेडियस ट्रेंड। ओके, तो एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे हैं पहले मैं उसकी बात करता हूँ, फिर हम देखेंगे आयनिक स्पीसीज जो होती हैं उनका हम रेडियस कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो है बिटवीन ग्रुप 17 and 18. As per the trend, group 17 should have a higher radius than the group 18. But actually, as per trend, but actually, group 18 have higher radius than even group 1. And then go to the group 17. अब हर एक का देखो, कोई भी ट्रेंड में जहाँ पे भी डिफरेंस आता है वहां पे कुछ रीजन होता है। इसका रीजन होता है कि हम बाकी एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं कोवालेंट रेडियस, वहीं पे हम जो इनर्ट केसेस हैं उनके लिए हम यूज कर रहे हैं वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल रेडियस से लार्जर इन साइज कंपेयर टू दी कोवालेंट रेडियस, बिकॉज वांडरवाल radius is measured for local gases whereas covalent or metallic radius is measured for other elements. ये है इसका रीजन। और कोवेलेंट रेडियस वन ड्रॉल रेडियस जो होती है वो क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस से लार्जर इन साइज होती है। ये तो पहला एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 2 है एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में एक्चुअली में होना चाहिए था दिस शुड हैव बीन द एज पर ट्रेंड, एंड एक्चुअली क्या होता है, both aluminum and gallium have almost same radius. Both aluminum and gallium have almost same radius. रीजन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, बेसिकली होता क्या है कि जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट के एलिमेंट्स पहले आते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर ऑर्बिट में एंटर करते हैं, तो बेसिकली सिग्मा इंक्रीज कर रहा है और ऑफ कोर्स जेड तो इंक्रीज कर ही रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ऐसा बोलते हैं डी सबसेल जो होता है उसका स्क्रीनिंग बहुत ही वीक होता है।
डी सबसे जो है उसका स्क्रीनिंग वीक होता है। तो पी ब्लॉक या एस ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके सिमिलर स्क्रीनिंग नहीं कर पाएगा। तो जो सिग्मा है वो जेड के कंपैरिजन में इतना इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर जेड के कंपैरिजन इतना इंक्रीज नहीं करेगा तो जेड तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, सिग्मा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ नहीं है, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा। एन इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, नलिफाइड हो जाता है। और यही सेम चीज होती है कहाँ पे, जर्कोनियम एंड हॉफनियम में, बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉम्प्लेक्स। बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो लास्ट जो इसमें एक्सेप्शन आता है वो है कि भाई जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, उसमें कहता है रेडियस जो है वो ग्रुप 3 से लेके 8 तक तो डिक्रीज करती है, और फिर 9 टू 12, सॉरी 9 तक डिक्रीज करती है, 3 से 9 डिक्रीज करती है, देन 10 टू 12 क्या करती है, वापस से इंक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, और यहाँ पे रीजन क्या होता है भाई, जब डी ब्लॉक में या डी सबसेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्लोज हो जाते हैं, तो उसके से रिपल्सन सडनली बहुत इंक्रीज कर जाता है। और सडन इन ड्यू टू सडन इंक्रीज इन रिपल्सन, रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, दिस इज द रीजन। एंड आफ्टर फ्रॉम 13 ऑनवर्ड्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। 13 ऑनवर्ड्स कहता है रेडियस डिक्रीज करना शुरू कर देता है। ये कुछ एक्सेप्शंस है। अब हम बात करते हैं आयोनिक स्पीशीज की। तो आयोनिक स्पीशीज में दो चीजें हैं, एक है न्यूट्रल एटम, एक है केटायन और एक है एनायन। न्यूट्रल, केटायन, एनायन। जो इनकी रेडियस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं, देखो होता क्या है कि केटायन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है इसका मतलब देखो जेड तो सेम है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम हो गया है। समटाइम्स क्या होता है केटायन की वजह से नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कम हो जाता है, यानी कि एन भी डिक्रीज कर जाता है। एन या रिपल्सन कम हो रहा है, जेड सेम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस की ओर मूव करते हैं, यानी न्यूक्लियस के पास में आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रेडियस जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। न्यूट्रल एटम की जो रेडियस है वो केटायन से ज्यादा होती है। एनायन के केस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, जेड सेम है, अट्रैक्शन फोर्स सेम है, रिपल्सन फोर्स इंक्रीज हो गया है, तो डेफिनेटली साइज इंक्रीज करेगी, और जब साइज इंक्रीज करेगी यानी कि रेडियस इंक्रीज करेगी। तो ये होता है आयनिक स्पीशीज का ट्रेंड। anion are larger in size than the neutral atom, is larger in size than the cation। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अगर हम बात करें, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यानी क्या रिपल्सन सेम है, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो दूसरी चीज कैसे होगी, एन ऑल्सो सेम। बट बट जेड इज डिफरेंट, और जेड डिफरेंट है तो यहां से हम बोलेंगे रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में उसकी रेडियस कम।
ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन फिगर आउट द ट्रेंड इन द रेडियस। अब बोलो तो इतना क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, अगर कोई डाउट तो बता दो। क्वेश्चंस करें, चलो तो फिर हो जाओ शुरू। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, भाई तुम्हारे पास में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, चाहे वो आयनिक स्पीसीज हो या न्यूट्रल स्पीसीज हो, तुम्हें उनका करेक्ट ऑर्डर फिगर करना है, पता करो कौन सा सही ऑर्डर है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। चलो जल्दी से फिगर आउट करो। ओके ओके मिताली, वेल डन गाइस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? ओके प्राची, ओके पायल। चलो देखो डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरो। एज पर दी पीरियड टेबल अगर हम अरेंज करें तो बेरिलियम, देन बोरोन एंड देन नाइट्रोजन यहाँ पे। और हमें पता है लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज करते हैं, दिस शुड हैव बीन द राइट ट्रेंड, लेकिन गिवन कुछ और है, यानी दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में हम देखें, एफ माइनस ओ टू माइनस एन थ्री माइनस। अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे बात करते हो, दीज थ्री आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोलेटेड स्पीसीज तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, एंड ऑर्डर ऑफ जेड, ऑर्डर कितना है, क्या है भाई? फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। जेड का ऑर्डर ये है तो रेडियस का ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा, तो फिर दिस इज द राइट आंसर। एंड ओके यही दिया है तो यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। सोडियम में, लिथियम में, पोटेशियम तीन है। अगर पीरियड में हम उसको अरेंज करें तो लिथियम में, सोडियम, पोटेशियम ऐसे अरेंज होते हैं। हमें पता है जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है, तो करेक्ट ऑर्डर शुड हैव बीन लिथियम में, सोडियम एंड पोटेशियम, बट गिवन तो कुछ और है यानी गलत है। लास्ट ऑप्शन डी में क्या किया हुआ है? Fe3 प्लस, Fe2 प्लस एंड Fe4 प्लस। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रेडियस उतना ही कम, तो इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस ज्यादा, तो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे आता है Fe4 प्लस, देन Fe3 प्लस, एंड देन Fe2 प्लस। लेकिन गिवन तो कुछ और है, यानी ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन पे चले। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस व्हिच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज। कौन सा करेक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है रेडियस का? फिगर आउट करो जल्दी से। वेरी गुड मिताली। वेरी गुड ब्रदर ध्रुमिल, प्राची, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड खुशी। पायल चेक करो एक बार फिर से, कहीं गलती तो नहीं हुई? देखो एलिमेंट्स मेरे पास में कौन कौन से हैं, स्पीशीज मेरे पास में कौन कौन से हैं? O2 माइनस है, F माइनस है, Na प्लस है, Mg2 प्लस है एंड Al3 प्लस है।
मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है कि शायद ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पे आएगा 8+2, क्योंकि देखो जेड क्या है, 8, 9, 11, 12 और 13। ये 9+1, देखो माइनस चार्ज मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गायब कर रहे हैं। दिस इज 11-1, दिस इज 12-2 एंड दिस इज 13-3। भाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है ना, वो तो सभी में 10 10 10 10 आ रहा है, यानी ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। जब इधर तुम जा रहे हो तो जेड इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस डिक्रीज करेगी, जब रेडियस डिक्रीज करेगी तो ऑर्डर हो गया ये, यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर है, यस और नो? चलो, अगर इतना क्लियर है तो हम फिर बात करते हैं किसकी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। सॉरी, एक शुरू कर लेते हैं, चलो, बिफोर टॉकिंग अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन, which one of the following is the smallest inside? तो इनमें से कौन सबसे small है? ओके मिताली, ओके प्राची, ओके खुशी, ओके ब्रद। देखो अभी तुमने कुछ देर पहले किया है, तीन एलिमेंट्स को कंपेयर भी किया था, O2 माइनस F माइनस Na+, तो अभी कंपेयर किया था। N3 माइनस को इसमें रख लो तो N3 माइनस ये आ जाएगा। अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें तो दिस इज द राइट ऑर्डर। और इसमें तुम देख सकते हो स्मॉलेस्ट कौन है, सोडियम प्लस है। अगर लार्जेस्ट पूछे तो N3, दिस इज लार्जेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्लियर है? अब बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, बात करें आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल, तो भाई देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी क्या होता है, ये सिंपल सा ऐसे समझो इसको कि हमारे पास में कोई एक एटम है, उसका जो सबसे आउटर सेल, सॉरी, हमारे पास कोई एटम है, सिंगल एटम गैसियस स्टेट में है, तो उसके आउटर सेल से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, उसके लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? विल हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। देखो अपने आप को निकलता तो कभी का निकल जाता, राइट? अगर एटम के अंदर वो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि वो अपने आप बाहर नहीं निकलने वाला है। इफ यू वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, अगर तो निकालना तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो किसी भी आइसोलेटेड यानी सिंगल एटम इन गैसियस स्टेट, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली क्या करना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है, रिमूव
one electron from outer shell. So energy required is ionization energy. ठीक है, ऐसे समझो इसको। अब भाई जब हम इसके ट्रेंड की बात करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे और टॉप से बॉटम जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो होता क्या है कि रेडियस डिक्रीज करती है, जेड जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता है। क्या होता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, रेडियस है वो डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसका आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। भाई कोई भी आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास तभी आएगा जब न्यूक्लियस उसको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, राइट। और जब न्यूक्लियस किसी आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ? उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट है। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही डिफिकल्ट है। यस और नो? यस और नो? अगर इतना ही डिफिकल्ट है, इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट से राइट से जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं क्या होता है? जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेडियस इंक्रीज करती है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है? जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। जब आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड जो है वो वीक हो रहा है। न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है वो वीक हो रहा है। और अगर न्यूक्लियस वीकली अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बाहर निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है। और अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, टॉप से बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ये तो है नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो ऐसे हैं कि उनमें बहुत सारे एक्सेप्शन। उनमें क्या है? बहुत सारे एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। जो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है ग्रुप टू एंड ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। एज पर द ट्रेंड दिस शुड हैव बीन द ऑर्डर, बट जो इसका एक्चुअल ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर। अब बोलो, मैंने बोला था कोई भी अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो हमें उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन क्या है? ग्रुप टू का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है S2, और जो ग्रुप 13 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है S2। सॉरी,
P1 है ना। मैं बात करूँ सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13। यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी पेयरिंग हो चुकी है, या हमेशा बोलते हैं जो ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये ना तो हाफ फील्ड है नहीं फुली फील्ड है। और हमें एक चीज पता है कि हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्शियली हाफ फील्ड या पार्शियली फुली फील्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि देखो ये तो काफी स्टेबल है लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं है। और ये क्योंकि इतना स्टेबल नहीं है तो लेकिन वो क्या सकता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया ना तो फिर S2 बन जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में एटम स्टेबिलिटी को अटेन कर रहा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकालना प्रिफर करे, प्रिफर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप निकाल दे नहीं, लेकिन इतना है हमें हेल्प मिलेगी, जल्दी बाहर निकल जाएगा। जल्दी बाहर निकलने का मतलब एनर्जी कम रिक्वायर्ड, क्या होगा, एनर्जी जो कम रिक्वायर्ड होगी। क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। फिर हम आते हैं सेकंड एक्सेप्शन पे। सेकंड एक्सेप्शन है ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में। फिर वही चीज होना चाहिए था ये एज पर द ट्रेंड, होता ये है। फिर वही रीजन, जो ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है P3, और जो 16 वाले हैं उनका होता है P4। भाई ये तो हाफ फील्ड है, ये ना तो हाफ फील्ड है नहीं फुली फील्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद क्या बन रहा है, ये हाफ फील्ड बन रहा है। यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये ऑर्बिट आता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है कुछ एक्सेप्शन इन आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट, या हम बात करते हैं कंटिन्यूअस आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कंटिन्यूअस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। रीजन क्या होता है, देखो भाई, रीजन सिंपल सी बात है, एक न्यूट्रल एटम जो है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन लेके आना आसान है, बताओ विच वन इज इजियर, टू टेक वन इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम और फ्रॉम ए केटायन। नहीं निकाली, देखो न्यूट्रल एटम जो है वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर लेके आना आसान है कंपेयर टू केटायन। रीजन सिंपल है, रीजन क्या है कि भाई देखो न्यूट्रल एटम है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन जब केटायन बन चुका है ना तो उसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर और कम है, केटायन उतने सॉरी प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए।
जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनका इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे समझो, पहले के माध्यम में न्यूक्लियर की बात करता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम की, तो पहले 13 प्रोटॉन्स को 13 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने पड़ रहे थे। उनका काम थोड़ा मुश्किल था, यानी मुश्किल से होल्ड कर पा रहे थे, तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान था। अब जब केटायन बन गया ना, जब एल्यूमिनियम प्लस बन गया, अब 13 प्रोटॉन जो सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। अब जो इनका होल्ड होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमारे लिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो कंटिन्यूअस आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि IE1 is less than IE2 is less than IE3 is less than IE4 IE5 and so on। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है तो फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो डाउट हो तो पहले बताया, तो पहले उसको डिस्कस करिए। बोलो। चलो फिर क्वेश्चंस किया जाए। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल of sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order। तुम्हें ऑर्डर फिगर आउट करना है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ओके, वेरी गुड पायल, वेरी गुड खुशी। पूजा, एक बार क्रॉस चेक कर लो कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। वेरी गुड प्राची, मिताली, ब्रैड। देखो डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स मेरे पास में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14। एज पर द ट्रेंड दिस शुड हैव बीन द राइट आंसर, लेकिन हमें पता है ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के बीच में क्या है, एक्सेप्शन है। बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पे ऐसा आएगा, और अगर ऐसा है तो करेक्ट क्या हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, दिस इज द राइट आंसर। और अगर हम और इसको सही से बिठाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन। अब इन दोनों से देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों ही सही है। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक वो ये वाला दिया है ऊपर, दिस वन इज गिवन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं उनका जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन द मेटेलिक एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स कम है, मेटल्स ज्यादा है। तीसरा बोला, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स अलोंग अ पीरियड नॉट वेरी इन ए रेगुलर मैनर विद इंक्रीज इन एटॉम। ये बोल रहा है जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है एलिमेंट्स की अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट से राइट जा रहा है, एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं करती है एटॉम नंबर के साथ, मतलब उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं। और लास्ट बोल रहा है, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द डी सबसेल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली इंक्रीज एटॉम नंबर। मतलब कि डी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन कंटिन्यूअसली फिल होते हैं, वहां भी कोई एक्सेप्शंस नहीं होता है।
ठीक है, तो मैं ये पता करना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके मिताली, वेरी गुड। वेरी गुड प्राची। वेरी गुड खुशी। वेरी गुड सुनील। वेरी गुड विजय। चलो देखते हैं कौन सा सही आंसर है। बोला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है, सॉरी प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। भाई सही है, मॉडर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स, ये भी सही है। नॉन मेटल्स तो बहुत ही कम है, मेटल्स मेटल्स वेरी बड़ी है सारी। थर्ड बोला द फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट अलोंग ए पीरियड डू नॉट वेरी इन ए रेगुलर मैनर, मतलब एक्सेप्शंस है, बिल्कुल एक्सेप्शंस है। सही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं मोनोटोनिकली, नहीं भाई एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट। अगर एक्सेप्शन प्रेजेंट है यानी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोनोटोनिकली नहीं कर रहा है, एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट। चलो अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following statement and explain this and answer as per the options given है। एसेसन दिया हुआ है कि फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ बेरिलियम जो है वो बोरोन से ज्यादा होती है। तुम्हें ये पता करना है सही है कि गलत है। रीजन दिया हुआ है कि 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s। बोला है कि 2p ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी 2s से कम होती है। तुम्हें ये भी पता करना है सही है कि नहीं है। दोनों चीजें पता हो जाए कि असर्शन सही है कि नहीं है, रीजन सही है कि नहीं है। उसके बाद में ये फिगर आउट करो अगर दोनों सही है तो क्या रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड सुनील। रद्द मिताली प्लीज चेक वंस अगेन। खुशी प्लीज चेक वंस अगेन। वेरी गुड प्राची। यस मिताली नाउ करेक्ट। पायल प्लीज चेक वंस अगेन। यस विजय वेरी गुड। तो भाई देखो, फर्स्ट आयनिक एनर्जी बेरिलियम और बोरोन की हम बात करें तो बेरिलियम आता है ग्रुप 2 का एलिमेंट, बोरोन है ग्रुप 13 का एलिमेंट। ड्यू टू एक्सेप्शन दिस इज द राइट वन। तो ये तो सही है, दिस इज राइट। फिर रीजन बोल 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है 2s से कम होती है। भाई हमने मॉडर्न एटॉमिक पीरियड में, सॉरी मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में हमने देखा था कि 1s is having less energy than 2s, then 2p, then 3s। यानी कि 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है तो बोल रहा है 2p की कम है। भाई गलत है, सरासर गलत, सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, यानी असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, तो डाउट है बता दें। क्लियर है, ओके देन लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बेसिकली क्या हो रहा था, या आयोनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली क्या हो रहा था कि एक न्यूट्रल एटम से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन मतलब अभी गेन करेगा, यानी अभी न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अभी क्या है, जो न्यूट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो अगर ऐसा केस है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी? gaseous isolated atom accepts electron and in the process releases some energy which is known as electron gain enthalpy or इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब देखो ऑलवेज एनर्जी रिलीज नहीं करता है बट जनरली रिलीज करता है। देखो क्या है कि कोई भी एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर वो स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर रहा है तो वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमें दे रहे हैं, एनर्जी भी हमें दे रहे हैं, लेकिन अगर स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो हम देंगे लेकिन एनर्जी एटम देगा। ठीक है, ऐसा फंडा होता है। तो इसके अंदर हम बात करें तो हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि लेफ्ट से राइट से हम जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्यों भाई, देखो लेफ्ट साइड वाले जो एटम होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, और जो राइट साइड वाले एटम होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट करेंगे, और जो रिलीज करना चाहते हैं वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी वो एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, हमें उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज। ये ध्यान रखना, हम बात करें नेगेटिव वैल्यू, हम किसी बात करें नेगेटिव वैल्यू की बात, यानी कि ऐसा मत समझना सिर्फ वैल्यू को कंपेयर नहीं की है, हम नेगेटिव साइन के साथ कंसीडर करें। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास वैल्यूज है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर कंपेयर। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कोई एटम तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज कराएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आने वाली। ठीक है, फिर जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। रीजन क्या है भाई, जब टॉप से बॉटम जाएंगे तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नया इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, सिंपल सी बात है, कोई भी एटम जो है वो नया इलेक्ट्रॉन तभी ले सकता है अगर उसका खुद के इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल अच्छा है। खुद के इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल अच्छा नहीं तो नए इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल कहां से बनाएगा। और हमें पता है जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पे कंट्रोल लूज होता है, इसलिए एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है।
period 3 elements have more electron affinity than period 2, बट होना ऐसा नहीं चाहिए था। होना क्या चाहिए था कि पीरियड 2 जो है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स। आज जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स जो है ना उनकी साइज बहुत कम है। साइज बहुत कम है तो जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 3 के एलिमेंट से कम हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। होना चाहिए था फ्लोरीन को, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हाईएस्ट। हम यहाँ पे नोबल गैसेस को कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कुछ। चलो कुछ क्वेश्चंस की बात करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली क्या है? टेंडेंसी या हम बोल सकते हैं कैपेबिलिटी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि भाई किन्हीं दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी या कैपेबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा है। उसकी इलेक्ट्रॉनिटी क्या है? उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। और इसमें देखो सिंपल सी बात है भाई, ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सा इसका ट्रेंड है, लेफ्ट से राइट जाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप से बॉटम जाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। वही सेम रीजन भाई, लेफ्ट राइट जा रहे हैं, एटम का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो दूसरे को खींच सकता है, और जब टॉप बॉटम जाएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड वीक हो रहा है तो दूसरे को कहां से खींचेंगे? इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इसमें कोई एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन अपार्ट फ्रॉम नोबल गैसेस। मतलब हम नोबल गैसेस की बात नहीं करेंगे, नोबल गैस तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही नहीं है तो इसलिए उनको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो फ्लोरीन एज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है हाईएस्ट, ये ध्यान में रखना। तो ये हमारा क्या हो गया, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर है उसका रिवीजन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against? मतलब ऑर्डर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है, कौन सा ऑर्डर जो प्रॉपर्टी गिवन है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है वो तुम्हें फिगर आउट करना है। जो पहला ऑर्डर है वो मेटेलिक रेडियस का है, दूसरा ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल एंथैल्पी का है, थर्ड ऑर्डर जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का है, एंड लास्ट ऑर्डर जो है आयन की साइज का है, रेडियस का। वेरी गुड पायल, वेरी गुड मिताली, वेरी गुड रवि, वेरी गुड प्राची। तो भाई देखो, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस टॉप टू बॉटम, जब चलो
जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगी, यानी ये सही जो ऑर्डर दिया वो सही है। चलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, बट एक एक्सेप्शन है। क्या होता है? पीरियड 3 हैविंग मोर देन ए पीरियड 2। तो यानी कि अभी हमारे पास जो है आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन, यानी कि ये भी सही है। फ्लोरीन पीरियड 2 का है, ये पीरियड 3 का है, ये 4 का है और ये 5 का है, यानी कि ये सही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, बट एक्सेप्शन होता है। ग्रुप 15 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी 16 से ज्यादा होती है, यानी कि नाइट्रोजन शुड हैव मोर देन ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या हो गया? गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे अगर तुम बात करो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, और इसके अकॉर्डिंग ये सही ऑर्डर है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The ionic radii in angstrom of N3 minus O2 minus and F minus are restricted. कुछ वैल्यू की है तो बताना है कि नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस और F माइनस की आयनिक रेडियस को रिस्पेक्टिवली कितनी कितनी। वेरी गुड मिताली, वेरी गुड पायल, वेरी गुड विजय एंड प्राची। देखो, सिंपलेस्ट तरीका क्या है, इनका ऑर्डर लिख लो। N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, तो हमें पता है आइसोलेटेड स्पीशीज है, तो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा साइज डिक्रीज करेगी, तो ये हमारा ऑर्डर है, तो इसकी रेडियस मैक्सिमम है, फिर उससे कम एंड फ्लोरीन की रेडियस स्मॉलेस्ट होगी। ऐसा देखो कौन से वैल्यूज गिवन है, ऑप्शन ए में ही ऐसा दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन। Next is the fast ionization potential of sodium is 5.1 electron volt. The value of electron conflict of sodium plus volume. बताओ कितना होगा? Very good Payal, very good Kushi, very good Mitali, very good Brad. भाई देखो, हम सोडियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन देके सोडियम प्लस बना रहा है। इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो कितना दिया हुआ है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें पूछा किसके लिए भाई? Na प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी पूछिए, तो Na बनेगा। इसके लिए डेल्टा एच कितना होगा? तो रिएक्शन उल्टी करेंगे तो डेल्टा एच है वो भी क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। डेल्टा एच वन इज बेसिकली माइनस ऑफ डेल्टा एच विच इज माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। The electronegativity of the following elements in increasing order is, जिसकी इलेक्ट्रॉन सबसे कम है वो सबसे पहले है, जिसकी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में गिवन है। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर कौन सा है? वेरी गुड पायल, वेरी गुड प्राची, बाकी जो ट्राई करो जल्दी।
देखो जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको मैं पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर देता हूँ। दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज सिलिकॉन एंड दिस इज फॉस्फोरस। बताओ। वेरी गुड मिताली। सी, एक बार फिर से चेक करके देख लो। देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी ये ऑर्डर होगा। टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, यानी ये ऑर्डर होगा। अब यहाँ से देखो, नाइट्रोजन जो है उसकी तरफ दोनों मुंह खुले हैं, यानी नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। सिलिकॉन की तरफ दोनों मुंह बंद हैं, यानी सिलिकॉन की सबसे कम होगी। बीच में बिठाना है हमें नाइट सॉरी कार्बन एंड फॉस्फोरस को। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीमेंट ज्यादा आता है कंपेयर टू लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो डिक्रीज कम होती है, टॉप टू जाते हैं तो डिक्रीज ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव की। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में कार्बन, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में फॉस्फोरस। दिस इज द राइट ऑर्डर एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का। नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, पॉइजन्स रूल्स, डाइपोल मोमेंट, इन सब के बारे में तो पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। और मैं अभी फीडबैक को लॉन्च कर रहा हूँ, उस पर भी रिस्पॉन्ड कर देना। कोई अगर डाउट हो चेक सेक्शन में लिखो, नहीं तो फीडबैक कॉल पे रिस्पॉन्ड करो।